الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تا 7 تک تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، اس میں واو جو ہے یہ زائد ہے، حمزہ کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ آگے مد متصل ہو رہا ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعلی، یہاں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے یا جو ہے یہ زائد ہے۔ ہدم من ربہم، اس میں دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ دو زبر کی تنوین کو ہم میم سے ملا کر پڑھیں گے اور یہاں پر جو قاعدہ لگے گا وہ ہے ادغام کا۔ یہاں ادغام اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف جر معلوم میں سے میم آ رہا ہے۔ آگے نون ساکن میں پھر ادغام ہو رہا ہے۔ پہلے والا جو ادغام ہے غننے کے ساتھ اور دوسرا جو ادغام ہے وہ بغیر غننے کی ہوگا۔ آگے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، با مشدد ہے، اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگے میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو ہمل اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ آگے واو مدہ ہے اور وقف میں یہاں ہوگا مد آرس اور وقف تام۔ پوری آیت کو ہم اس طرح پڑھیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک
उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। आगे इन्नल्लज़ीना, यहाँ नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना होगा। आगे लाम मुशद्दद है और नून को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ अलिफ जो है इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। आगे जाल को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे या मद्दा हो रहा है। कफारू, यहाँ रापुर और वाव मद्दा है। सवा, उनमें मद्दे मुत्तसिल हो रहा है और आगे तनवीन है। यहाँ मद्दे मुत्तसिल इसलिए हो रहा है कि अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में आ गया है। आगे तनवीन में इज़हार हल्की होगा कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन आ रहा है। अलैहिन में यालीन होगा। आगे मीम साकिन है, यहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा। अअंज़रतहुम में नून साकिन में इख्फा होगा। रा पुर है, रा इसलिए पुर है कि रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर आ गया है। यहाँ हुम में मीम साकिन में होगा इज़हार शफ़वी। अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, यहाँ मीम साकिन में इज़हार शफ़वी है, फिर मीम साकिन में इज़हार शफ़वी है। आगे नून साकिन में इख्फा होगा। यहाँ नून साकिन में इख्फा इसलिए हो रहा है कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से लाल आ रहा है। आगे रा को बारीक पढ़ेंगे कि रा साकिन से पहले हरफ के नीचे जेर आ गया है। आगे मीम साकिन में इज़हार शफ़वी होगा। लाम को हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे हमजा साकिन है, इसको झटके के साथ पढ़ेंगे। आगे फिर वाव मद्दा है और वक्फ में यहाँ होगा मद्दे आरिस और वक्फ़े ताम। यहाँ मद्दे आरिस इसलिए हो रहा है कि वाव मद्दा के बाद आरजी सुकून आ गया है, यानी नून को हमने वक्फ की वजह से खुद ही साकिन किया है और गोल दायरा ये वक्फ़े ताम की अलामत है। पूरी आयत को हम ऐसे पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। आगे ख़तमल्लाहु में ख़ापुर, अल्लाह पाक का लाम पुर खड़ा ज़बर। यहाँ ख़ा इसलिए पुर हो रहा है कि ख़ा हरूफ़ मुस्तालिया में से है, तो अल्लाह पाक का लाम इसलिए पुर पढ़ा जाएगा कि अल्लाह पाक के लाम से पहले हरफ पर ज़बर आ गया है। अला कुलूबिहिम व अला समइहिम में अला में खड़ा ज़बर है, या जायद है, इसको हम लाम को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। कुलूबिहिम में काहपुर वाव मद्दा, मीम साकिन में इज़हार शफ़वी। आगे फिर खड़ा ज़बर है, लाम को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। आगे या जायद है, आगे मीम साकिन में इज़हार शफ़वी हो रहा है और वक्फ में यहाँ होगा वक्फ़े मुतलक। व अला अबसारिहिम गिशावह, और यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगा। वहाँ यहाँ मद्दे मुनफसिल इसलिए हो रहा है कि खड़े ज़बर के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया है। बा साकिन है, इसमें कलकला होगा। आगे स्वाद पुर पढ़ेंगे। आगे फिर अली मद्दा होगा, इसलिए स्वाद को हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। मीम साकिन में इज़हार शफ़वी होगा। गैन पुर होगा क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। आगे अली मद्दा होगा, अली मद्दा इसलिए होगा कि अलिफ से पहले ज़बर आ गया है। और गोल ता को वक्फ में हा साकिन में बदल देंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यहाँ कायदे होंगे मीम साकिन में इज़हार शफ़वी, ज़ाल को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे तनवीन में इजहार होगा। ज़ापुर या मद्दा तनवीन और वक्फ में यहाँ होगा मद्दे आरिस और वक्फ़े ताम। ये आइन जो है ये वक्फ की लामत है। यहाँ साइड पे देखें,
आइन लिखा हुआ है, आइन के सर के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये सूरत का रुकू है। आइन के सबसे नीचे जो है ये पारे का रुकू है, और आइन के पेट के अंदर जो 7 लिखा हुआ है ये इस रुकू की आयात हैं। अब हम इन आयात को रिपीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पाक कलाम को तजवीद व क़राअत के मुताबिक हमारी ज़ुबानों पर जारी फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आज हमने जो कुछ पढ़ा सीखा, अल्लाह पाक उसको अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आपको, आपकी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को बीमारियों से महफूज फरमाए। सुन्नतों भरी तवील जिंदगी खैर व आफियत के साथ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।